Hello students. Today I am giving a revision of Python which we have already studied in 11th class. Again, it is very essential, very compulsory because Python is a very lengthy language. Now first we discuss introduction. Python is widely used general purpose high level programming language basically. Again, it is object oriented language. Currently it is used many organization, even Google is also using. Python developed by Guido van Rossum. Basically, it is used for development purpose like software development, web development, system scripting, mathematics, and etc. It is just a revision class which you can recall or remind previous 11th class which you have studied in Python. Now next is features. Uh, Python is very easy to use because syntax is not difficult. Second, it is an interpreted language. Interpreted language means there are two things in language. Very first thing, compiled language, and another one is interpreted language. So this is an interpreted language. The meaning of interpreted is it compile coding line by line. So very accuracy gives the result. No doubt, it has some drawback. That's for example, if we are using interpreter, that means output it will run very slowly. Next is cross-platform language. It can run on Windows, Linux, Mac. The meaning is we can run on Windows, Linux, or Mac operating system. Mac basically used for Apple. Expressive language, less code to be written. Yes, it is very important. Coding is very less. Complete net is a complete wide range of libraries there. N number of things are there. Now free and open source. That is the most important thing. Free and open source means you can download freely. Source code are free to see the things, and you can also modify it. That means existing coding आप modify कर सकते हो. You can modify it. Now when we study any language, very first thing we should know what is token. Token is a smallest unit in a program is known as token. Smallest part. There are 5 things involved in token. Keyword, identifier, literal, operator, and punctuator. These are the 5 things which token is used. Now very first thing, what is keyword? Keyword are specific or reserved word. The meaning of keyword and reserved word is same, number 1. And keyword or reserved word have a special meaning. And one of the most important thing, we cannot take keyword or reserved word as a variable. This is the most important thing which you remember it. Next, you can note down it in this thing. There are 33 keywords or reserved words in Python. So example in, if, break, class, and continue, previously you have studied. Now next is identifiers. Identifier are fundamental block of a program. That means we identify something. Which thing we have used it, we can use it, we can use in identifier. It's a combination of character, alphabets, numbers, and underscore. We can use it for giving any identifier name like variable name, literal name, function name. These are called identifier. Next is literal. Literal, the meaning of literal is same as constant. So literal and constant are same. Literals are data item that fixed value. The meaning is same. मैंने meaning बताया same है कि literal जो है वो fixed है, constant है. अब इस कौन कौन से literals होते हैं जिसमें fixed value होती है? Number 1, string literals. String मतलब string is a combination of character. For example, myself Nilesh. So Nilesh is a string. And for example, N, I, L, E, S, H. These are individual character. So if I say N, that is a character literal. If I say Nilesh, that is a string literal.
So character shows one character, string shows combination of characters, two or more characters. Next is numeric literals. Numeric literals means numeric integer number. Next is boolean. Boolean means either true or false. Next is special literal. None. None means nothing. None is a keyword which normally use Python. Next is literal collection. Literal collection basically कांस्टेंट का कलेक्शन है. मैंने स्ट्रिंग लिटरल के बारे में आपको अभी बताया. स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग लिटरल है. नॉन कैरेक्टर प्रिंट होते हैं, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्रीवियसली यू हैव स्टडीड. स्ट्रिंग लिटरल मैंने बता दिया आपको. लाइक स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर टैप की, एंड स्लैश आर फॉर कैरियर्स रिटर्न. This thing you know it, and this thing you can implement it in double quotes. तो डबल कोट्स में आप लिखते हैं और इसी के बेसिस पे हम काम करते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस. सो स्ट्रिंग लिटरल इज ऑल्सो कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस बिकॉज एस्केप सीक्वेंस आर ऑलरेडी देयर. दैट इज कॉल्ड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स. अब स्ट्रिंग टाइप में टेक्स्ट 1 में कंप्यूटर, स्ट्रिंग टेक्स्ट 2 साइंस. In 13G Python, text 1 equals to welcome. Welcome to school, डबल कोट्स में लिखा हुआ. प्रिंट text 1, इसको प्रिंट कर दिया. We can print it. ये welcome to school प्रिंट हो गया. That is output. Size of string depend on कि आपकी क्या है. तो size, how to identify len is a function. Now remember it, previous class you have set is simple bracket start close. So that is len function. It tells the count of characters in the string. Multi-line comment. Now important thing, backslash is not counted. So comment always given with a hash. Hash is the thing which you can give it through comment. Numeric literal, positive number, negative number हो सकता है without decimal. This thing important it, you remember it, this thing. Floating point means real number value. That means either true or false, either decimal value, real value. That means 23.35. This is a floating value. Next is complex number. Complex number basically combination of numeric plus other things like a plus bj. A and b are floating value, and j we can say is a constant or some specific value which create complexity. So complex number are there. And previously you have find out it like quadratic equation, b square minus 4ac upon 2a. So this is the thing. Now next is boolean literal. Boolean basically true or false. True or false. This thing you remember it. Special literal, none represent absence of value. None means nothing. Now data type, number, string, boolean, list, tuple, set, dictionary we have already studied. You have already studied. We are just revise it in this lecture. Next is operator. Operator are special symbol in Python. Basically, like plus, minus, multiply, divide. These are the special symbol which you can use it. So one unary operator is there. Unary operator are those operator which use single operand. Single operand means single एक variable के साथ जो operation होता है वो unary operator. तो plus and minus are the operator which use single character. Bitwise implementation, logical negotiation, again use. Now arithmetic operator, plus, minus, multiply, divide, modulus. These are arithmetic operator. Bitwise operator. Shift operator, like shift operator is also called bitwise operator. Identify operator is not. This thing you have previously studied. Relational operator. Relational means greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to. Logical operator. And or not. These are logical operator in any language. This is the most important thing. Next is assignment operator. Assignment operator use single operand, single symbol, equal.
More symbol is also there, assignment quotient, assignment sum, like a plus equals to b. So the meaning is a plus equals to b, a plus equals to b. The meaning is a equals to a plus b. ये इसका meaning है. So in short, if you want to write it a equals to a plus b, you can write it a plus equals to b. Same reminder, difference, sum, quotient. Membership operator, whether variable is in sequence or not. These two things, use it in membership operator. Next is punctuator. Special symbol are used, like these are the common punctuator. Like single quotes, if we want to write it string, single quotes you can write it, double quotes you can write it, hash used for comment, slash you can use it, simple bracket start you can use it, less square bracket start close you can use it, curly bracket start close, at the rate. These are the things are there. Now purpose of Python program, which thing is used it? In any program there are one thing, you can use it single line comment or double line comment or multi-line comment. Single line comment always use hash. You highlight it. I'm highlighting the thing, single line comment. And multi-line comment always use three quotes, three single quotes, like one single quotes and two single quotes start, and one single quotes and two single quotes end. Function block of code having same name and can be used it. Now next thing is after giving comment, comment is optional. Remember, when important thing, comment is optional thing. And comment you can give or not, both are same. Next is input, you can take it, input you can take it, then process it, then gives output. These are the things which you can use it in any Python program. Again, example has given, like print hello, it will print it hello. Next is if a is greater than 90, so the meaning is if the value of a is greater than 90, then we can execute the code. So these are the very specific thing. Again, most important thing, comment you can give it on every line, and comment you can give on top of the program also. Like variable name you can give it, age is the variable, Anant is a variable. Now dynamic typing, the meaning of dynamic typing means changing the value at certain things, like age equals to 10, print age, it will print the value 10. Age 10, print age, it will print the value, in this situation print the value ten, in this situation print the value 10, 10. So type thing is identified, it is numeric value or string value. This thing important, you remember it. Now multiple assignment, again very important thing, x equals to y equals to z equals to 20. That means in a single line you can assign it multiple assignment, like x equals to y equals to z equals to 20. That means x, y, z, all the variables value is 20. Next is x, y, z equals to 20, 40, 60. That means x is 20, y is 40, z is 60. Next, input. You can take it, input is the function for inputting the value. Input function always return a string type. This is the most important thing which you have studied in previous class, like 11. This is the function which you can return a string value. Next is use integer or float function to convert type string to integer or float. Yes, very important thing. By default, it will take it a string, and you can convert it according to your requirement, like integer or float. If you want to convert it integer, write it integer before input function. And if you want to convert float, you can write it float. Output, you can use it print statement. Print statement, you can use it. Separator, also use it. Now data type, we have already studied this thing. Again, numbers have integer, float, complex, string, literal, tuple, dictionary, numbers, integer, second number, float, decimal value, complex number. Already seen previous at the top of the things. String, already seen. Now next is list.
List in Python represent a list of commas separated by value. Data type between square bracket. Now very important thing, mutable data type. Changeable. List have 1 2 3 4 5 A B C D F, red cat bed egg. List equals to 1 2 3 print. Now this is the scripting code. If I assign list is a variable, this is a variable and equals to 1 2 3 4 5 print list, it will print it 1 2 3 4 5. Now next is if we assign first element or access first element, list 0 equals to 20. Now in case of 1 it will assign 20. That is the most important thing. इस बात को ध्यान रखना कि अब 1 की जगह 20 हो गया. Now see it, print 20 2 3 4 5. फर्स्ट पेज की वैल्यू है वो चेंज हो गई. तो लिस्ट आपकी कैसे होती है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है. ये जस्ट रिवीजन ही हो रहा है. नाउ नेक्स्ट इज टपल. टपल इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. इम्यूटेबल टाइप. टपल इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ डेटा टाइप बिटवीन राउंड ब्रैकेट्स. ये राउंड ब्रैकेट में यूज होता है टपल. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ए इक्वल्स टू एबीसीडी, बी इक्वल्स टू रेड बैट कैट डॉग. अब ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया, राइट ए प्रोग्राम. WAP का मीनिंग होता है राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिस्ट बेस्ड ऑन यूजर इनपुट इफ लेंथ ऑफ लिस्ट इज नॉट नोन. तो लेंथ अगर नहीं है तो लिस्ट आप लेंथ नाम से फंक्शन है दैट यू कैन अप्लाई इट. अब नेम इक्वल्स टू इनपुट इंटर योर नेम ऑफ द स्टूडेंट. आपने नाम इंटर करा. लिस्ट डॉट अपेंड नेम. नेम इज द वेरिएबल विच वी आर इंटरिंग. अपेंड मीन्स एडिंग, आपको लिस्ट में ऐड करते जाना. डू यू वांट टू इंटर मोर स्टूडेंट्स? अगर आपने यस करा तो फॉर लूप लगेगा, ये अगली लाइन पे आएगा. फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई. तो जो भी वैल्यू आप जितने भी इनपुट दोगे वो करता जाएगा. और हर बार पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू और डू यू वांट टू मोर स्टूडेंट. तो ये लूप चलता रहेगा यस और नो के लिए. ये चीज को याद रखना. नाउ डिक्शनरी. डिक्शनरी इन पाइथन रिप्रेजेंट अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा. अनऑर्डर्ड का मतलब है सीक्वेंस नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी वैल्यू जनरेट की वैल्यू. पाइथन में क्या होता है, डिक्शनरी में हर वैल्यू के अगेंस्ट में एक की वैल्यू जनरेट होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है. तो यहां जैसे a इक्वल्स टू दिया तो एक वेरिएबल हो गया डिक्शनरी का, A1 B2 C3 D4 ये असाइन हो गया. और फिर उसकी वैल्यू आपने प्रिंट करके देखी. इसी को और अच्छे से समझना है तो आप यहां से कर सकते हो. डिक्शनरी, एक इंपॉर्टेंट बात यह कि डिक्शनरी ऑलवेज यूज कर्ली ब्रैकेट. लिस्ट ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रेसेस. ये आप ध्यान रखना. फिर नेम, इनपुट द नेम ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट का नाम एंटर करना. मार्क्स, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. एंटर द मार्क्स इन CS और IP. आप IP के भी देख सकते हो. डिक्शनरी नेम इक्वल्स टू मार्क्स, ये आ जाएगा. फिर ये फॉर लूप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा. फॉर आई इन डिक्शनरी प्रिंट आई कॉमा डिक्शनरी. आई मतलब उसकी लोकेशन, किस लोकेशन पे प्रिंट हुआ. और डिक मतलब डिक कीवर्ड है जिसके थ्रू डिक्शनरी क्रिएट होती है और उसमें जिस पोजीशन की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी. अब इसमें आया राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी बेस्ड ऑन यूजर इनपुट इफ लेंथ इज नॉट नोन. तो लेंथ मालूम नहीं है तो वही पुराने जैसे ये लिस्ट जैसे जो अभी अपन ने ऊपर देखा, प्रिंट आई कॉमा डिक. तो ये उसी एक के अकॉर्डिंग यस और नो. अगर आप बार बार यस करते जाओगे तो वो बताता जाएगा. तो इसमें ये चीज ध्यान रखना कि म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप. इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस. तो इम्यूटेबल जितने डेटा टाइप है वो सब चेंज नहीं कर सकते वैल्यू. और अगर आप ऊपर देखोगे अभी आप तो डिक्शनरी ये टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है ना, जो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते. टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, डिक्शनरी की चेंज कर सकते हैं. म्यूटेबल कैन चेंज द वैल्यू. तो इम्यूटेबल कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, ये इम्यूटेबल है. और म्यूटेबल कौन से होते हैं? जो चेंज कर सकते हैं, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, सेट. ये बात आप ध्यान रखना, इसको आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन भी आप जो भी आप लिखते हो लाइक x इक्वल्स टू y प्लस z.
So x, y, z and variable equals operator y plus z plus again is operator, arithmetic operator, use it. This is called expression. Now next is, अब एक्सप्रेशन किस किस टाइप के हो सकते हैं? तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन. अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. रिलेशनल मतलब ग्रेटर देन लेस देन. लॉजिकल मतलब एंड और नॉट यूज कर रहे हैं. स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूज कर रहे हो. और इवेल्युएटिंग मतलब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वही जो मैंने अभी आपको बताया. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कास्टिंग यूज होता है, जो आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा. तो जस्ट एक बार आप उसको रीड करो कि क्या बोल रहा है. दो तरह की कास्टिंग होती है. एक होती है इम्प्लिसिट कास्ट कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना पड़ता है फोर्सफुली. ये जैसे दिया हुआ है, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है. डेटा टाइप अगर आप एक्सप्रेशन के आगे दे दो तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, और किसी भी डेटा टाइप के आगे अगर कोई एक्सप्रेशन नहीं देते तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है. जैसे ये एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को देखो तो उसमें ये पता पड़ेगा कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है. अमाउंट आ रहा था फ्लोट में, बट उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब टाइप कास्ट कर दिया फोर्सफुली. अब इसमें ये देखने में आया कि अमाउंट इंटीजर मतलब फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो हट गई. कास्टिंग जो होती है फोर्सफुली की जाती है. अब टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन पाइथन. स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, ये सब हम पढ़ चुके हैं. एम्प्टी स्टेटमेंट मतलब खाली, कोई लिखा हुआ नहीं. तो ये सिंपल स्टेटमेंट मतलब नॉर्मली इनपुट लिया आउटपुट लिया. कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर इफ कंडीशन में है, लूप में है, तो इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है. अब आगे आते हैं अपन. प्रोग्राम का यही स्ट्रक्चर देख रखा है, जैसे हेडर लाइन, बॉडी. प्रोग्राम टू फाइंड एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग. अब वोटिंग के लिए क्या 18 ईयर्स होना चाहिए, तो 17 से ज्यादा तो स्वाभाविक 18 ही आएगी. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उसमें आ जाएगा प्रिंट एलिजिबिलिटी टू वोट. एल्स आप एज देख सकते हो कि नॉट एलिजिबल. अगर वो 18 से छोटा है या 17 से छोटा है तो वो आप दे सकते हो. तो इफ स्टेटमेंट आता है, तो जैसे बेसिकली क्या है, मैं इसको शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो कई तरह के स्टेटमेंट होते हैं. पहले सिंपल एक प्रोग्राम बनता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. फिर एक इफ कंडीशन के थ्रू प्रोग्राम बनता है जिसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है. आपने ये भी पढ़ रखा होगा. फिर इफ कंडीशन में इफ एल्स पढ़ा होगा आपने. इफ एल्स के बाद जैसा भी आप प्रोग्राम देख सकते हो, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन ईयर इज लीप ईयर. तो लीप ईयर के लिए आपके पास फंडा है तो 4 से मॉड निकले. उसके अलावा अगर आपको याद हो तो हर 400 साल में एक दिन बढ़ता है. अगर आपको याद हो तो उसमें 365 समथिंग कुछ लेके वो आगे बढ़ता है. तो हर 100 साल में उसकी एक वैल्यू एक दिन बढ़ जाता है, जिसको 360 मतलब ये तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है, वो तो है ही. तो आपके पास 3 कॉन्सेप्ट आएंगे. 4 से मॉडुलस है, 100 से मॉडुलस है और 400 से मॉडुलस है. तो वो ईयर लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है. एलिफ तब लगता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, इफ कंडीशन जो चलती है वो 2 वैल्यूज को चेक करता है, ट्रू और फॉल्स. एलिफ तब लगता है जब आपकी 2 वैल्यूज से आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है और आप फिर कंपैरिजन कर रहे हो, तो उस केस में एलिफ लगता है. अब आगे बढ़े हम, थोड़ा सा फास्ट ले लें हम. लूप. लूप का मीनिंग मैं शॉर्ट में समझाऊं. लूप का मीनिंग होता है, लूप बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स व्हेनेवर द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. अगर कोई भी पार्ट, लूप का कोई पार्ट जो बार बार एग्जीक्यूट कराना हो हमको, और वो
सर्टन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं तो वो लूप तब तक चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपको ग्राउंड पर 10 राउंड लगाना, तो 10 राउंड आपके जब तक कंप्लीट नहीं होंगे जब तक वो दौड़ता रहेगा। तो यही बताया लूप में, आप इसको एक बार देख भी सकते हो। फिर आगे बढ़े हम। लूप में रेंज फंक्शन होती है। बेसिकली लूप में दो तरह से लूप आपने पाइथन में पहले देखे होंगे, उसको मैं शॉर्ट में और बता रहा हूँ। एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। व्हाइल लूप में रेंज कीवर्ड यूज नहीं होता और फॉर लूप में रेंज कीवर्ड यूज होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी आगे और नीचे आ रहा है तो मैं उसको आपको और समझा दूंगा। इसमें रेंज फंक्शन ये बताता है कि भाई आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टॉप कहाँ हो रहा है। और एक रेंज फंक्शन हमें ये बताता है कि स्टेप वैल्यू कितनी हो रही है। स्टेप मतलब कितने से बढ़ाना है घटाना है। सो देयर आर 3 थिंग्स इन रेंज फंक्शन। फिर इन ऑपरेटर बेसिकली फॉर लूप के साथ लगता है। ये सिंटेक्स दे रखा है, थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखें और हाईलाइट। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस और कॉलम, तो इस चीज को ध्यान ये रखना है कि भाई वेरिएबल मतलब फॉर आई इन लिस्ट या कोई भी वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा। तो ये लूप, ये फॉर लूप का सिंटेक्स है। कॉलन, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल लूप हो या फॉर लूप हो, इसमें इंडेंटेशन यूज होता है। तो इंडेंटेशन यू कैन यूज इट, जैसे व्हाइल का भी बता रहा है ये। व्हाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन कॉलन, लूप बॉडी यहां से नहीं आएगी, जैसे आप इंटरप्रेस करोगे पाइथन में वो वहीं से आएगी। ये जैसे आप इंटरप्रेस करोगे उधर आएगी। जैसे लूप चलाया फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 वाइल, ये देखो ये सही बिल्कुल चला है। इंटर जैसे प्रेस करा यहाँ आया प्रिंट एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4। ये लूप की वैल्यू है। आप ये प्रोग्राम कर भी सकते हो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, n is entered by the user. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर इन द रेंज 1 to n, n is entered by the user. राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल where n is entered by the user. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहो तो इसके भी प्रोग्राम बना सकते हो ताकि पुराना प्रैक्टिस हो जाए आपको। और पाइथन के लिए आप पाइथन डाउनलोड कर लो 3.7 वर्जन। उस पर आपको सभी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके कोर्स के हिसाब से। नंपाई आपको लेना पड़ेगा, डेटा फ्रेम आपको लेना पड़ेगी, सीरीज आपको लेना पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें आप। फिर लूप में एल्स स्टेटमेंट, ये एक सी फैसिलिटी है जो केवल पाइथन में दी हुई है। दिस इज द बिगेस्ट फैसिलिटी विच इज गिवन इन पाइथन कि लूप एल्स। लूप एल्स का मतलब है कि लूप अगर एग्जीक्यूट हो जाता है और बाय द वे उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो फिर आप एल्स पार्ट लगा सकते हो, जैसे इफ कंडीशन में लगता है। दिस इज द बिगेस्ट फैसिलिटी विच इज गिवन ओनली इन पाइथन, नो अदर लैंग्वेज इज गिवन। इस तरह की लैंग्वेज किसी ने भी इस तरह की फैसिलिटी कहीं भी प्रोवाइड नहीं है। तो ये देखो जैसे ये फॉर लूप का सिंटेक्स लिया है, फॉर आई 3 से 5 तक है तो 3 4 लिया। एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि 5 तक चलता नहीं है, रेंज ऑलवेज यूज लेस देन 1, इस बात को ध्यान रखें। और फिर बता रहा हूँ, ये हमारा रिवीजन चल रहा है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। इसको एक बार आप देखेंगे तो ये वही चीज बताएगा। फिर लूप एल्स में ये बता रहा है। अब इसको एक बार आप देखो कि फॉर लूप विथ एल्स आई इन रेंज 1 4 प्रिंट आई एल्स। अब ये जो है ये कमेंट है, ये कमेंट है। और एल्स फॉर का पार्ट है इसलिए एल्स यहाँ आया इंडेंटेशन में। प्रिंट यहाँ का पार्ट है इसलिए इंडेंटेशन में यहाँ आया। प्रिंट नो ब्रेक, ये एल्स का पार्ट है तो मतलब ब्रेक नहीं करा। तो 1 2 3 चला, जैसे 1 2 3 बाद उसके बाद आएगा तो नो ब्रेक लिखा हुआ आ जाएगा। तो 1 2 3 4 एग्जैक्टली आएगा नहीं, 4 इसमें वो दे रखा गलत, क्योंकि रेंज फंक्शन में आखिरी वैल्यू नहीं आती। तो 4 विल नॉट डिस्प्ले बट नो ब्रेक आएगा। नो ब्रेक मतलब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है। 1 2 3 और एल्स, 4 विल नॉट डिस्प्ले इट। अब नेक्स्ट आता है जंप स्टेटमेंट। बेसिकली जंप स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट होते हैं, जंप, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होता है, ब्रेक होता है लूप को आपको स्पेसिफिक पार्ट पे एग्जीक्यूट वो करना हो, बाहर आना हो, तो ब्रेक स्टेटमेंट लगता है। जैसे मान लो आपका लूप 15 टाइम्स चल रहा है और आप 10 के बाद ही बाहर आना चाहते हो, तो आई इक्वल्स टू 10 लिख दो, ब्रेक कर दो, तो बचे हुए पार्ट पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका फायदा ये मिलता है कि अगर हमारे को हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो लूप रिमेनिंग पार्ट में चलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू।
कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन वो बताता है कि आपको कंटिन्यू करना है क्या, मतलब जैसे कंटिन्यू के बाद जो भी चीज लिखी जाती है वो इग्नोर हो जाती है कंपाइलर से। तो कंटिन्यू के बाद जो भी लिखा वो इग्नोर होगा, लूप पूरा चलेगा, पर कंटिन्यू के बाद जितनी चीजें वो इग्नोर हो जाएगी, दैट मीन्स कंपाइलर विल नॉट प्रिंट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 से लेके 5 तक दिया, ब्रेक, कंटिन्यू, पास तीनों बता रहा हूं इसी में, आपने i इक्वल्स टू 3 दिया, ब्रेक कर दिया, तो लूप 3 बार चल के खत्म हो जाएगा। फिर आपने बोला कंटिन्यू करना, तो ऑड नंबर पे कंटिन्यू करना, तो i पे 1 प्रिंट हो जाएगा i, लेकिन i पे 2 कंटिन्यू करा मतलब प्रिंट करा, प्रिंट नहीं करा तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी और i की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट लिखा वो प्रिंट नहीं होगा अगर आपने प्रिंट i लिखा है तो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट विल इग्नोर द वैल्यू। इस चीज को ध्यान रखें आप। थोड़ा सा और फास्ट ले लें। फिर पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट ये बताता है कि नथिंग, i इक्वल्स टू i पास, इसका आउटपुट देंगे तो जहां जहां i मिलेगा उसको हटा देगा, पास कर देगा। जैसे अपन बोलते हैं ना खेलते समय कि पास पास, मतलब आप पड़ोसी को चांस दे रहे हो, तो ऐसे ही इसमें अगर आपने i इक्वल्स टू 1 ले लिया, लूप के अंदर है ये, यहाँ पे i इन स्पेस आएगी तो 1 पास एल्स प्रिंट आई, ये इसको प्रिंट दिया, ये लिखा हुआ भी है कंटिन्यू और पास का। फिर नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है लूप इनसाइड द लूप, इट्स कॉल्ड नेस्टेड लूप। कोई भी प्रोग्राम अपन देख सकते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप का अपन ने देखा। नेस्टेड लूप में ये होता है कि लूप के अंदर लूप, मतलब आपका फॉर लूप के अंदर फॉर लूप हो सकता है, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर हो सकता है। फिर आ रहा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। ये आप देखो बस, स्ट्रिंग इन 2 वेज, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो 0 1 2 3 4, और राइट टू लेफ्ट चलते हो तो -1 2 3, इस बात को ध्यान रखो। और स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल इन पाइथन, तो ध्यान रखना है, चेंजेस नहीं होते इसमें। ये देखो, ये एक एग्जांपल दिया है, 0 1 2 3 लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 0 1 2 3 ये दिखा है, और यहाँ दिया 1 2 3 4 5 6। जब राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो -1 -2 -3 आएगा, और लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो 0 1 2 3 आएगा। फिर लिस्ट इन पाइथन, अब लिस्ट हम देख चुके हैं, स्क्वायर ब्रेसेस में यूज होती है और वैल्यू स्टोर होती है। कॉलन लगाया तो आप इंडेक्सिंग की वैल्यू हमेशा लिस्ट में 0 से होती है, ये हम देख भी चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ उस चीज को कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इन ऑर्डर और चेंजेबल, म्यूटेबल। फिर अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू इंटर कर सकते हैं। लिस्ट कंटेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ये लिस्ट म्यूटेबल, इम्यूटेबल। एलिमेंट्स कैन बी असाइन स्पेसिफिक इंडेक्स। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल, स्ट्रिंग चेंजेबल नहीं है। ये इसमें देख रखा है, क्रिएट ए लिस्ट, टू क्रिएट ए लिस्ट इनक्लोज द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट विद इन द स्क्वायर ब्रेसेस एंड सेपरेट एलिमेंट्स बाय कॉमा, ये लिस्ट के बारे में बता रखा है। फिर क्रिएटिंग ए लिस्ट, लिस्ट आइटम ये 1 2 3 4 दिया, ये एग्जांपल दिया। अच्छा, लिस्ट में कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप लिस्ट न्यूमेरिक वैल्यू की भी बना सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू की भी बना सकते हो। ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स ऑलवेज रिमेंबर इन पाइथन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये फिर एप्पल बनाना चेरी, ये स्ट्रिंग है, ये एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, अगर कुछ नहीं लिया है, जैसे एल इक्वल्स टू ये लिया, इसका मतलब एम्प्टी, और फिर ये हैश एम्प्टी लिस्ट, मतलब ये एम्प्टी लिस्ट हमने ली है, ये अलग अलग टाइप की लिस्ट है। फिर टपल, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। अब ध्यान रखना, इम्यूटेबल होता है, चेंजेबल नहीं होता है। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब नॉट चेंजेबल। डुप्लीकेट मेंबर्स आ सकते हैं। तो टपल हमेशा जो बनेगा ना, इसका आप सिंटेक्स देखोगे तो सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज होता है। टपल नेम इक्वल्स टू वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये टपल दे रखा है। इस चीज को ध्यान रखो, मैं केवल आपको बस ये बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिर डिक्शनरी, अब डिक्शनरी में एक खासियत ये है कि डिक्शनरी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड, चेंजेबल और इंडेक्स। डिक्शनरी हैज की एंड वैल्यूज। अब ये ध्यान रखना, हर चीज के अगेंस्ट में एक वैल्यू जनरेट करता है, वो वैल्यू इसमें ध्यान रखने वाली बात है। डज नॉट इंडेक्स फॉर वैल्यू, कीवर्ड एंड इंडेक्स। डिक्शनरी डज नॉट हैव डुप्लीकेट मेंबर्स, मींस नो डुप्लीकेट की।
कॉमा यूज होता है और डिक्शनरी में हमेशा याद रखना कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, टपल में सिंपल ब्रैकेट यूज होता है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लो। ए डिक्शनरी की वैल्यूज की कैन बी ऑलमोस्ट एनी पाइथन टाइप बट यूजुअली नंबर्स और स्ट्रिंग। तो इसमें नॉर्मली डिक्शनरी में क्या होता है, नंबर्स या स्ट्रिंग होते हैं। वैल्यू कैन बी असाइंड और एक्सेस यूजिंग स्क्वायर ब्रेसेस। अब ये ध्यान रखना कि असाइन जो होती है वो कर्ली ब्रैकेट से होती है। ये देखो सिंटेक्स, हर चीज का सिंटेक्स आप याद रखो। ये की मतलब वो वेरिएबल और उसकी वैल्यू, वेरिएबल उसकी वैल्यू, वेरिएबल उसके वैल्यू, वेरिएबल कॉलन वैल्यू, कॉमा वेरिएबल कॉलन वैल्यू। ये इसमें दे भी रखा। अच्छा ये स्क्रिप्टिंग कोड है, ध्यान रखना, ट्रिपल शेल कोड जिसको बोलते हैं। पाइथन में 3 कोड होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, शेल, इंटरएक्टिव, स्क्रिप्टिंग और शेल। शेल में डायरेक्ट प्रिंट होता है, प्रिंट स्टेटमेंट लगाते नहीं है। इंटरएक्टिव कोड ब्लैक स्क्रीन आती है, और स्क्रिप्टिंग कोड में व्हाइट स्क्रीन आती है और व्हाइट स्क्रीन पे आप करते हैं, तो उसमें प्रिंट स्टेटमेंट जरूर यूज होता है। अभी आप देखोगे तो ये फिजिक्स 75, केमिस्ट्री 78, मैथ्स 81 ये दिया है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी का ऐसे प्रिंट होती है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज से ये प्रिंट हो गई। देखो ये प्रिंट होगी, एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हुई। अब उसके बाद जैसे ये मार्क्स इक्वल्स टू फिजिक्स 75, केमिस्ट्री, अब ये प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पे यहाँ पे लिख दोगे मार्क्स, तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये इसमें अगर आप नीचे स्क्रिप्टिंग कोड में ही आप ट्रिपल ग्रेटर देन के साथ मार्क्स प्रिंट करोगे तो फिजिक्स की 75, केमिस्ट्री की 78, मैथ्स की 81 और सीएस की 78 लिख जाएगी। ये दे भी रखा है एक और एग्जांपल, मार्क्स डिक्शनरी फिजिक्स 75। ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है जो डिक्शनरी के कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग पास है अंदर। ऊपर ये डायरेक्ट डिक्शनरी है ये, और यहां पर अलग है, ये डिक्शनरी डिक कीवर्ड यूज करा है कंस्ट्रक्टर। तो दोनों में अंतर ये है कि उसमें वैल्यू देयर इज नो गारंटी दैट एलिमेंट इन डिक्शनरी कैन बी एक्सेस इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें कोई ऑर्डर यूज होगा ऐसी गारंटी नहीं है, पर इसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं तो वो लिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट आएगी। जैसे मार्क्स इसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग फिजिक्स 75, केमिस्ट्री 78, मैथ्स 81, सीएस 78 ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहां मैंने आपको काफी चीजें बताई है। जैसे हम ये बात करें कि पाइथन का इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट सिंपल, फिर उसके बाद आपकी इफ कंडीशन, इफ एल्स, फिर इफ एल्स एलिफ, फिर लूप। लूप 2 प्रकार के देखे हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फिर लूप के साथ एल्स। मैंने इसलिए आपको इतना सब रिवाइज कराया ताकि आपको पुराना रिकॉल हो जाए, और फिर आगे हम कोई लेक्चर देखें तो वो हमको डायरेक्ट समझ में आए। फिर लूप के बाद स्ट्रिंग देखा हमने, लिस्ट देखी हमने। लिस्ट देखने के बाद आपने टपल देखा, डिक्शनरी देखी। ये सारी चीजें हमने एक बार देखी। ये रिवीजन, पाइथन फीचर, टोकन, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, स्ट्रिंग, फिर कमेंट भी देखी हमने, लिटरल, बुलियन लिटरल, डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ऑपरेटर देखे हमने। ऑपरेटर देखने के बाद फिर पंक्चुएटर देखे, वेरिएबल देखे, डायनामिक मल्टीपल असाइनमेंट देखे, इनपुट आउटपुट देखा। ये सारे जो है लिस्ट, डिक्शनरी, म्यूटेबल टाइप्स आर दोज वैल्यू कैन बी चेंज। म्यूटेबल में हमेशा चेंज होती है और इम्यूटेबल पे चेंज नहीं होती है। चेंजेस केवल लिस्ट, डिक्शनरी, सेट में होते हैं। इस चीज को ध्यान रख लो या याद कर लो उस चीज को। म्यूटेबल डेटा टाइप्स चेंजेबल होते हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट ये म्यूटेबल होते हैं, बाकी सब इम्यूटेबल। बाकी सब मतलब बेसिक डेटा टाइप, टपल, स्ट्रिंग वही म्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंजेबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए इतना ही। और आप आगे इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे तो आगे वीडियो में आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वीडियो आते रहेंगे उस चीज का। और इस चीज को ध्यान रखें। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं।